آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مسلمانوں کو تعلیمی دھارے سے جوڑنے انفرادی کوششوں کی بجائے اجتماعی کوششیں کرنا وقت کا اہم تقاضا۔ وام کی جانب سے شہر میں منعقدہ تعلیمی کانفرنس سے دانشوروں کا خطاب۔ تلجا پور بس سٹینڈ بن گیا خانگی گاڑیوں کا پارکنگ شیڈ، مسافروں اور ST ملازمین کو پریشانی کا سامنا۔ بار بار شکایت کرنے کے بعد ST انتظامیہ آیا حرکت میں، بس سٹینڈ کے احاطے میں پارک کی گئی خانگی گاڑیوں کی اتاری گئی ہوا۔ ضلع ناندیڑ کے بلولی کے ڈپٹی ڈویژنل پولیس آفیسر ارچت چانڈک نے کی ریت مافیاؤں کے خلاف بڑی کارروائی۔ موضع سگروڈی کے سرکاری ریت پٹے سے غیر قانونی طریقے سے ریت اٹھانے والی 38 گاڑیاں اور 5 JCB پوکلین سمیت بوگس وے بل رسیدیں کر لی ضبط۔ اور تعلقہ احمد پور کے تلسی رام تانڈا پاجھر تالاب پر کپڑے دھونے گئی 5 خواتین پانی میں ڈوب جانے کے سبب فوت، تانڈا بستی میں بچھ گئی صفے ماتم۔ خبریں تفصیل سے۔ ویلفیئر ایسوسی ایشن فار ریسرجنس آف مائنرٹیز نئی دہلی کی جانب سے آج شہر میں ایک ریاستی سطح کی تعلیمی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دانشوروں نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا اور حاضرین کی رہنمائی کی۔ ویلفیئر ایسوسی ایشن فار ریسرجنس آف مائنرٹیز یعنی وام کی جانب سے منعقدہ اس تعلیمی کانفرنس کا آغاز تذکیر قرآن سے عمل میں آیا، جس میں مولانا معز الدین فاروقی ندوی نے تعلیم سے متعلق قرآنی احکامات سے حاضرین کو واقف کرواتے ہوئے موجودہ حالات میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد حافظ مدثر انصاری نے بارگاہ رسالت کی خدمت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ معروف شیخ نے وام کے اغراض و مقاصد سے حاضرین کو واقف کروایا۔ اسی طرح MS ایجوکیشن اکیڈمی کے کنوینر و ڈائریکٹر ڈاکٹر مصباح الدین نے تعلیم کے میدان میں انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ اجتماعی کوششیں وقت کی ضرورت کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عبدالکریم پارک چیریٹیبل ٹرسٹ اور ہیومینٹی چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالمجید پارک نے قرآن کا مطلوبہ نظام تعلیم اور ہم کے عنوان پر تفصیلی گفتگو کی، جبکہ راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر فوزیہ خان نے اقلیتیں اور موجودہ تعلیمی پالیسی کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مہاراشٹر وقف بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر وجاہت مرزا اور MP امتیاز جلیل نے بھی موجودہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے تاثرات پیش کیے۔ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا نیو دہلی کے صدر ڈاکٹر سید ظفر محمود بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا حل اور مسلمانوں کا اپنا تعلیمی نظام اس عنوان پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں اسمبلی کی تشکیل دی گئی۔ اس کانفرنس میں ماہرین تعلیم اور دانشوران قوم و ملت کثیر تعداد میں شریک تھے۔ بورڈ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں ہم صرف اندر بیٹھ کر میٹنگ نہیں کر رہے ہیں، زمین پہ اتر کر جہاں پر جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے وقت کی زمین واپس لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نشتر واڑی کے اندر 16 ایکڑ زمین، میں اکیلا نہیں، وجاہت مرزا صاحب، فوزیہ میڈم، امتیاز جلیل کے ساتھ پورے وقف بورڈ کے ممبرز، ادھیکاری نشتر واڑی کے اندر 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کر گئے اور وہاں پر گاڑے وہاں پر یہ کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے۔ ہم نے اپنے قبضے میں لی۔ ناریگاؤں علاقے کے اندر جب وہاں پر ہمارے کو یہ پتا چلا کہ تقریباً 85 ایکڑ زمین وقف کی ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر پولیس کی مدد سے سڑکوں کے ادھیکاریوں کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ زمین ہم نے واپس لی ہے، ہم نے اس پر قبضے میں لی ہے، ہم نے حاصل کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کو جان بوجھ کر نہ جانے کتنی سرکاروں نے، ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے کیسے چھن جائے۔ وقت کے تعلق سے سرکاریں چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کی کوشش یہی رہی ہے یہ مسلمانوں کی جائیدادیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آج 85 ایکڑ زمین ہم نے اگر واپس لیے ہے تو ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اس زمین کے اوپر ہم کریں کیا، کیونکہ وقف بورڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرکار پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اسی لیے میں وضاحت مرزا صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہم کانفرنسز بہت ساری آرگنائز کرتے ہیں، ہم کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر الفاظ جیسا اسکول یہاں پر اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس کا جب ایڈمیشن شروع ہوتا ہے تو سر میرے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ایڈمیشن جب شروع ہوتا ہے اتنے سارے پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارے کو چٹھی دے دیجیے گا کیونکہ آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اگر ہم کو ہماری اس بیماری کا علاج کرنا ہے تو وضاحت مرزا صاحب ہم کو خود ایسے اسکولوں کے پاس جانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لو وقت کی زمین اور وہاں پر اسکول کھولتے ہیں۔ تلجا پور بس اسٹینڈ ان دنوں خانگی گاڑیوں کا پارکنگ شیڈ بنتا جا رہا ہے، جس کے سبب مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے اور ایس ٹی ملازمین کو بالخصوص ڈرائیورز کو پلیٹ فارم پر گاڑیاں لگانے میں دقتوں کا سامنا ہے، جس پر ایس ٹی انتظامیہ نے آج یہاں پارک کی گئی خانگی گاڑیوں کے پہیوں کی ہوا اتار دی۔ ناظرین، تلجا پور کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں دور دراز سے ہزاروں افراد روزانہ آتے جاتے رہتے ہیں جو ایس ٹی کارپوریشن کی بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور یہاں کے بس اسٹینڈ پر مختلف مقامات سے سینکڑوں گاڑیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر علاقے کے ساکنان تلجا پور بس اسٹینڈ کے احاطے میں اپنی 2 ویلر اور 4 ویلر گاڑیاں جہاں ان کا دل چاہتا ہے پارک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ ایس ٹی ڈرائیورز کو بھی بس اسٹینڈ میں مقررہ پلیٹ فارم پر گاڑیاں کھڑی کرنے میں دقتوں کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ عین پلیٹ فارم کے سامنے ہی خانگی 4 ویلر گاڑیاں پارک کر دی جاتی ہیں، مگر ان کے خلاف نہ تو ایس ٹی انتظامیہ کوئی کارروائی کرتا ہے اور نہ ہی پولیس ڈپارٹمنٹ ان پر روک لگاتا ہے، جس کے سبب مسافروں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی تھی اور بس اسٹینڈ کے احاطے میں گاڑیاں پارک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تھا، جس کے بعد ایس ٹی انتظامیہ خواب غفلت سے جاگ پڑا اور آج وہاں پارک کی گئی خانگی گاڑیوں کے ٹائروں کی ہوا اتار دی گئی۔ मला पंढरपूरला जायचं आहे आणि मी इथं दर्शनासाठी आलो होतो, तरी मी इथं बसस्टँडमध्ये आलो आहे। आता सध्या सगळ्या बस आहेत, इथं छोट्या गाड्या पण आहेत। मला हेच कळना की इथं बस स्टँड आहे का पार्किंग आहे, हे मला हेच कळना झालं आहे आणि मला काहीच कळना झालं। मला ह्याविषयी तुम्ही जरा सल्ला द्यावा म्हणून तुम्हाला बोलायला लागलो आहे मी। ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے گزشتہ روز ایک بیان دیا کہ مرکزی حکومت ممبئی کو مہاراشٹرا سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے، جس کی تصدیق این سی پی کے سینئر قائد و ریاستی وزیر دلیپ ورسے پاٹل نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جس طرح سے کام کر رہی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ممبئی کو مہاراشٹرا سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ असं आहे, आता मुख्यमंत्र्यांनी जे स्टेटमेंट केलेलं आहे त्याच्यावर मी काही प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नाही, परंतु ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या कारवाया सुरू आहेत त्या पद्धतीनं एक असा अंदाज दिसतो की याच्यापासून मुंबईला अलग करण्याच्या संदर्भामध्ये प्रयत्न केला जातो। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज अचानक बुरहानी कॉलोनी की विजिट दी और साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें ये तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िमन में ठोस कदम उठाएंगे। शहर में पानी की किल्लत का मसला दूर करने की गर्ज से शहर के किन किन इलाकों में पानी के अलावा रास्तों का मसला है, ये जानने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने बुरहानी कॉलोनी को विजिट दी और यहाँ के साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल सुनने के बाद उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल जल्द हल करवा लिए जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद वो अचानक कमल तालाब पर रुक गए और तालाब में मिट्टी डालकर उस पर नाजायज़ कब्जा करने की साजिश को भांपते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि कमल तालाब से मुताल्लिक़ हम कई मरतबा MCN पर ख़बर दिखा चुके हैं, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल कमिश्नर ने वहाँ विज़िट देकर हमारी ख़बरों की तस्दीक करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को तालाब से मिट्टी निकालकर उसे साफ़ करने का हुक्म दिया। शरद राव का आशीर्वाद रहा और भाई बाबूराव कदम का साथ मिला तो दुनिया भर में तालीमी इदारों का जाल बिछा देंगे। इस तरह का जज्बाती बयान कमल किशोर कदम ने दिया।
कमल किशोर कदम ने ये भी कहा कि जब शरद पवार इस उम्र में काम करते हैं और भागदौड़ करते हैं तो वो भी कैसे रुक सकते हैं, जिस पर शरद पवार ने भी साबिक वजीर कमल किशोर कदम की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्हें इस बात पर फख्र है कि उन्हें कमल किशोर कदम जैसे सियासी रहनुमा का साथ मिला है। वाज़ेह है कि जिला नांदेड़ में कमल किशोर कदम का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर कमल किशोर का ऑल पार्टीज की जानिब से शायान शान इस्तकबाल किया गया। या सगळ्या काळामध्ये समाधान कशात असेल तर कर्तृत्वान लोकांना योग्य ठिकाणी पाहून त्यांच्या बरोबर काम करण्याची संधी मिळाली, याचा इतका आनंद माझ्या सरकारला नाही. आणि कमल किशोर कदम याच्यातलं एक कर्तृत्वान अशा प्रकारचं रथ नाही. बरोबर होतो 20 वर्ष विधानसभेमध्ये विधान परिषदेमध्ये आमदार म्हणून काम करत होते. त्यांची भाषणं आम्ही ऐकली, ते शिक्षणाच्या बद्दलची असो आणखीन कुठल्या विषयाची असो अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि त्या अभ्यासपूर्ण भाषणाचा केंद्रबिंदू हा सामान्य माणूस होता. आणि मग सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून आपलं समाजकारण राजकारण करण्याचं सूत्र ज्यांनी घेतलं ती व्यक्ती कधी यशस्वी झाल्याचं राहत नाही. आणि याचं उत्तम उदाहरण असेल तर ते कमल किशोर कदमांचं उदाहरण आहे. हे म्हणण्याचं याच्यामध्ये अतिशयोक्ती नाही. आम्ही विधानसभेत होतो, संधी मिळाली, राज्य सरकारमध्ये काम करता आलं, शिक्षण मंत्री म्हणून काम केलं, अतिशय अभ्यासू शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांचं नाव लौकिक होता. पाहिलं नाही साहेब. मी आपला आशीर्वाद असू द्या, मी जगभरात संस्था स्थापन करील. आपले आशीर्वाद आणि बाबूरावांचं पाठबळ असलं तर या जगामध्ये मला काहीही अशक्य नाही. काम करण्याची इच्छा पाहिजे. बाबूराव कधी कधी म्हणतात, कमल बाबू आपण थकलो, आता थांबलं पाहिजे. मी म्हणतो शरदराव थांबत नाहीत, आपल्याला कसं थांबता येईल. शरदराव रोज आज अमरावती, उद्या जळगाव, परवा कोल्हापूर, रोज दौरे चालू, प्रचंड कामाचा हे आपण ओझं उचलताय साहेब. आम्हाला चिंता वाटते. पण मला रामराजे निंबाळकर म्हणले, कमल बाबू चिंता करू नका, साहेबांना काम करतच राहिलं पाहिजे तर साहेबांची प्रकृती ठीक राहील. साहेब आपले आशीर्वाद असेच आमच्यावर ठेवा एवढीच विनंती करतो. बिलोली जिला नांदेड़ में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस ऑफिसर अर्चित चांडक ने रेत से लदी 38 गाड़ियां, 5 जेसीबी, पोकलैन मशीनें और बोगस वेबिल रसीदें जब्त की हैं। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक बिलोली इलाके में महसूल मुलाजमीन की दस्ते शफ़क़त के सबब रेत की कालाबाजारी का काम ज़ोर शोर से जारी है। इस ज़िमन में अवाम ने कई मरतबा महसूल इंतज़ामिया से शिकायतें भी की, मगर मफाद परस्त महसूल मुलाजमीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन आईपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर के ओहदे पर मुकर्रर अर्चित चांडक ने रेत माफियाओं के ख़िलाफ़ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब उन्होंने मौज़े सिगरोडी के सरकारी रेत पट्टे पर अचानक रेड की और गैर क़ानूनी तरीक़े से रेत उठवाने वालों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से लदी 38 गाड़ियाँ, 5 जेसीबी, पोकलैन मशीनें, इसी तरह बोगस वेबिल रसीदें ज़ब्त की। रेत माफियाओं के ख़िलाफ़ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बतलाई जा रही है, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ रुपये लागत का सामान ज़ब्त किया गया। फ़र्ज शनास डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अर्चित चांडक की इस दिलेराना कार्रवाई से रेत माफियाओं की नींद हराम हो चुकी है और आवाम की जानिब से फ़र्ज शनास आईपीएस ऑफिसर की सराहना की जा रही है। मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी, रीड एंड लीड फाउंडेशन और ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ ईद की मुनासिबत से बरादरान वतन के लिए
दावत शीरखुरमा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लाइब्रेरी तहरीक वक्त की अहम ज़रूरत के उन्वान पर मुज़ाकरा भी मुनक़िद किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जिनमें अब्दुल मजीद पारिक, हुसैन भाई और स्मिता औचार थे, उन लोगों ने हाज़रीन की रहनुमाई की। अब्दुल मजीद पारिक ने कहा कि आज इंसान चांद और मरीख पर ज़िंदगी तलाश कर रहा है, मगर ज़मीन पर इंसानों के ख़ात्मे के लिए एटम बम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इंसानियत दम तोड़ती नज़र आ रही है। लिहाजा इंसानियत की बका के लिए हमें भाईचारे के फ़रोग़ के लिए सबको मिलकर काम करना वक्त का अहम तकाज़ा है। जबकि वसंतराव नाइक कॉलेज के साबिक़ प्रिंसिपल अब्दुल समद ने कहा कि मज़हब इस्लाम ने ज़कात जैसा प्यारा निज़ाम हमें दिया है, अगर उस पर सही सिमत में काम किया जाए तो मुसलमानों की माली पसमानदगी दूर होने में वक्त नहीं लगेगा। मगर अफसोस कि हमने 70 गुना सवाब हासिल करने के चक्कर में ज़कात को मुक़द्दस माह रमज़ान की हद तक ही महदूद कर दिया है, जबकि ये निज़ाम साल भर के लिए है और जब भी आपके पास मौजूद जमा पूंजी और माल व मता पर 1 साल मुकम्मल हो जाता है, उसी वक्त उसकी ज़कात अदा करना लाजमी है, ताकि साल भर ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होती रहें। जबकि अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कहा कि मुल्क कौम की तकदीरें बनाने और बिगाड़ने में किताबें और लाइब्रेरियां अहम रोल अदा करती हैं। इस प्रोग्राम में शहर की मिली समाजी व फलाही तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा संत सावता माली हॉस्टल के तलबा भी शरीक रहे। बाद अज़ां हाज़रीन की शीरखुरमे से ज़ियाफ़त की गई। निज़ामत के फ़राइज़ अब्दुल वहाब ने अंजाम दिए। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। और उसको एक अभिशाप समझा जाता है, जबकि यह अभिशाप नहीं है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए, एक खानदान में, एक छोटे से परिवार में, और वहां से मोहल्ले से लेकर के देश तक के आप चले जाइए, खुशहाली क्या लाता है? एक ब्रेन और 2 हाथ, ये एसेट है, ये अभिशाप नहीं हो सकता। जरूरत है कि इसको सही गाइडेंस दिखाइए, और ये गाइडेंस दिखाना आज हमारा काम है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज से 150 साल के बाद अगर हमारे और आपके दौर का इतिहास लिखने वाला जब कलम उठाएगा तो उसको ये ना लिखना पड़ जाए कि 150 साल पहले ये माजिद पारिक यहाँ भाषण दे रहा था, लेकिन इसी के साए के नीचे, इसी की दीवार के साए के नीचे एक गलत सोसाइटी ने जन्म लिया। ये बड़ी सोचने वाली। अब ये जो नेचुरल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऊपर वाले ने दिया है, ये वर्क फोर्स एंड मैन पावर दिया है, नदियों नहरों का जाल दिया है, तो इसके बारे में फरमाया वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि इंसानों, तुम्हारे मालिक ने ये नेमतें तुमको दी है, इस पर शुक्र अदा करो। आपस में लड़ के मर जाओगे, क्या ये मेरी नेचुरल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को देखते नहीं हो कि हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए चले जा रही है? कुदरत का ये लॉ है, नेचर। 16 मई 2022 बरोज़ पीर दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक राष्ट्रवादी भवन सिडको N11 में जनता दरबार मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासती वज़ीर सेहत राजेश भैया टोपे शिरकत करेंगे। लिहाजा शहरियान और बिलखुसूस NCP वर्कर्स अपने मसाइल हल करवाने की गर्ज से इस जनता दरबार में शिरकत करें। ये अपील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने की है। औरंगाबाद शहरवासी को खुश खबर, कल 16/5/2022 को 4 बजे से 6 बजे तक जनता का सुनने के लिए आदरणीय हमारे राजेश भैया टोपे साहब कल राष्ट्रवादी भवन में आने वाले हैं। जिसकी भी जो भी समस्या है, जिसका भी कोई भी काम है, तो हमारे राष्ट्रवादी भवन में आना, उसका काम इंशाअल्लाह काम होते रहे। गैर रियासती कंपनियों के कपास के बीज गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त करने का मामला उजागर होने के बाद गंगापुर के नौकार एग्रो कृषि केंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होते ही दुकान मालिक फरार हो गया है। बोंडा अलाई से मुतासिर होने के सबब कपास की फसल के लिए किसानों को 1 जून के बाद ही कपास के बीज फरोख्त किए जाएं। इस तरह का हुक्म मुताल्लिका महकमे की जानिब से दिया गया था।
मगर 1 जून तक कपास के बीज की फरोख्त पर पाबंदी आयद होने के बावजूद गैर रियासती कंपनियों से कपास के बीज मंगवाकर फरोख्त करने का मामला उजागर होने पर गंगापुर के नौकार कृषि एग्रो केंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसकी इत्तला मिलते ही दुकान मालिक उमेश झुंबरलाल फरार हो गया है। ताल्लुका फुलमरी के सोसाइटी चुनाव में अनुराधा ताई चौहान के स्वाभिमानी पैनल के 11 उम्मीदवार फातेह करार दिए गए। तालुका फुलमरी में इन दिनों सोसाइटी चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। सोसाइटी के ये चुनाव कई जगह तो सियासी वक़ार का मसला बने हुए हैं और चुनाव जीतने की तगोदो जोश खरोश से जारी है। इसी बीच तालुके के आदर्श किनगांव में विविध कार्यकारी सोसाइटी के चुनाव मुकम्मल हुए, जिसमें ज़िला परिषद की मेंबर और बहबूदिये ख़वातीन और अतफाल शोबे की चेयरपर्सन अनुराधा ताई चौहान की रहनुमाई में कायम करदा स्वाभिमानी शेतकरी ग्राम विकास पैनल को देही अवाम की बड़ी हिमायत हासिल हुई और इस पैनल के 13 में से 11 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली, जबकि मुकाबिल में चुनाव लड़ने वाले बोलबिन महाराज शेतकरी ग्राम विकास पैनल को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में अनुराधा चौहान के भतीजे निखिल कल्याण चौहान को सबसे ज़्यादा 321 वोट मिले। वाज़ेह है कि अनुराधा की क़यादत और रहनुमाई में ताल्लुक़े में कई सोसाइटियां उनके कब्ज़े में चली गई हैं और आइंदा कुछ अरसे में ज़रई बाज़ार समिति के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सोसाइटियों के वोट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ज़रई बाज़ार समिति का मंजरनामा भी मुस्तक़बिल क़रीब में तब्दील होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ताल्लुका अहमदपुर के तुलसीराम तांडा पाझर तालाब पर कपड़े धोने गई 5 ख़वातीन की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई, जिस पर तांडा बस्ती में सफ़े मातम बिछ गई। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका पालम के रामापुर तांडा और मुअज़्ज़म आबाद इन 2 देहातों के गन्ना तोड़ मजदूरों पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब उन लोगों तक ये खबर पहुंची कि ताल्लुका अहमदपुर के तुलसीराम तांडा पाझर तालाब पर कपड़े धोने गई उनके तांडे की 5 ख़वातीन तालाब के गहरे पानी में डूबकर फौत हो गई हैं। ये दिलखराश हादसा 14 मई की सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। मकामी साकिनान की मदद से 5 महलूकीन की डेड बॉडीज तालाब से बाहर निकाली गईं। ताल्लुका पातम के बनोस इलाके के रामापुर तांडा और मुअज़्ज़म आबाद तांडा के कुछ मजदूर अपने अफराद खानदान के साथ बालापुर सिद्दी शुगर सहकारी कारखाने में गन्ना तोड़ने का काम करने गए हुए थे। कपड़े धोने के लिए तांडे की कुछ ख़वातीन पाझर तालाब पर गई थीं। कुछ दिनों कबल कैनाल में पानी जमा हो जाने के सबब पाझर तालाब की सतह आब में भी इजाफा हो गया था, मगर कपड़े धोने के लिए वहां गई इन ख़वातीन को पानी की गहराई का अंदाज़ा न हुआ और वो गहरे पानी में डूबकर फौत हो गईं। महलूकीन में रामापुर की 45 साला राधाबाई धोंडीबा आड़े, उनकी 18 साला लड़की दीक्षा धोंडीबा आड़े, 19 साला लड़की काजल धोंडीबा आड़े, इसी तरह मुअज़्ज़माबाद तांडे की साकिनान 20 साला सुषमा संजय राठौड़ और 19 साला अरुणा गंगाधर राठौड़ शामिल हैं। मोबाइल और गाड़ियां चुराने वाले आदि मुलजिमीन को पुलिस ने 1 साल के लिए तड़ीपार कर दिया है, जिसके सबब फुलमरी के साकिनान व शहरियान ने इत्मीनान का इजहार किया। ताल्लुका फुलमरी के बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना हुदूद में गाड़ियों समेत दीगर चोरी की वारदात अंजाम देने की पादाश में 3 अफराद को 1 साल के लिए ज़िले की हुदूद से बाहर कर देने के अहकाम दिए जाने की इत्तला बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने गुज़िश्ता रोज़ दी है। इन तीनों के नाम शेख समीर शेख रज़ाक साकिन बड़ौद बाज़ार, ज्ञानेश्वर विष्णु धांडे साकिन बड़ौद बाज़ार और गजानन शंकर तुपे साकिन निरला ताल्लुका फुलमरी बतलाए गए हैं। वाज़ेह है कि बड़ौद बाज़ार पुलिस स्टेशन की हुदूद में पिछले 1 अरसे से चोरियों की वारदातों में इजाफा हो गया था और पे दर पे हो रही इन वारदातों के सबब इलाके के साकिनान सख्त परेशान व खौफज़दा थे। इसी दौरान फुलमरी सिल्लोड रोड पर अलंद के हफ्तेवारी बाजार के दिन भी एक क्रूज़र गाड़ी भगा ले जाने की कोशिश में एक मुलजिम पकड़ा गया और उसकी तफ्तीश के बाद उन मुलजिमीन का पर्दाफाश हुआ। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुसलमानों को तालीमी धारे से जोड़ने इंफरादी कोशिशों की बजाय इज्तिमाई कोशिशें करना वक्त का अहम तकाजा। वाम की जानिब से शहर में मुनक़दा तालीमी कॉन्फ्रेंस से दानिश्वरों का खिताब।
तुलजापुर बस स्टैंड बन गया खानगी गाड़ियों का पार्किंग शेड, मुसाफिरों और एसटी मुलाजमीन को परेशानी का सामना। बार बार शिकायत करने के बाद एसटी इंतजामिया आया हरकत में, बस स्टैंड के अहाते में पार्क की गई खानगी गाड़ियों की उतारी गई हवा। जिला नांदेड़ के बिलोली के डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अर्चित चांडक ने की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मौजे सिगरोड़ी के सरकारी रेत पट्टे से गैर कानूनी तरीके से रेत उठाने वाली 38 गाड़ियां और 5 जेसीबी पोकलेन समेत बोगस वेबिल रसीदें कर ली जब्त। और ताल्लुका अहमदपुर के तुलसीराम तांडा पाझर तालाब पर कपड़े धोने गई 5 खवातीन पानी में डूब जाने के सबब फौत। तांडा बस्ती में बिछ गई सफे मातम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।